السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ وہ ایک برساتی تاریک رات تھی، تیز برستی بارش اور آدھی رات۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بارش میری زندگی کی سب سے انوکھی بارش ثابت ہوگی۔ صرف ایک رات اس لڑکی کے ساتھ گزارنے کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی تھی۔ میں ایک ماہر نفسیات تھا، میں نے بہت سارے کیسز ہینڈل کیے تھے، لیکن میں نے ایک ایسا کیس ہینڈل کیا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کیا چاہتی تھی؟ بطور ایک ماہر نفسیات میں ہزاروں لوگوں سے بات کر چکا تھا، لیکن اس لڑکی نے جتنا مجھے حیران کیا تھا، آج تک مجھے کسی نے اتنا حیران نہیں کیا تھا۔ اس رات کلینک میں زیادہ رش نہیں تھا، کام جلد ہی ختم ہو گیا تھا۔ میری اسسٹنٹ نے کہا کہ وہ جا رہی ہے، اسے کلینک لاک کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا کام ہے، وہ چلی جائے، میں سارا کام سمیٹ کر کلینک لاک کر دوں گا خود ہی۔ تو وہ چلی گئی۔ باہر جو ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی وہ اب تیز بارش میں تبدیل ہو چکی تھی۔ باہر سب دکان بند کرنے لگے تھے۔ میں ایک پیشنٹ کا کیس سٹڈی کر رہا تھا اور بہت آرام سے سٹڈی کر رہا تھا۔ آج مجھے کوئی جلدی نہیں تھی کیونکہ میری بیوی میکی گئی ہوئی تھی، ورنہ اس کے فون پر فون آتے تھے اور میرے لیے کلینک میں بیٹھنا محال ہو جاتا تھا۔ اس لیے آج میں آرام دہ ہو کر اپنا کام کر رہا تھا۔ اصل میں میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے بار بار مجھے فون کرتی تھی، لیکن اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے اپنے میکے جانا پڑا تھا، ورنہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میکے بھی بہت کم جاتی تھی۔ میں تقریباً 12 بجے کلینک بند کر دیتا تھا، لیکن آج 12:45 بج گئے تھے۔ میں کام ختم کر کے اٹھا اور کلینک بند کرنے ہی لگا تھا کہ مجھے ایک نسوانی آواز سنائی تھی، صاحب مجھے اکیلے میں کچھ وقت چاہیے۔ تیز بارش میں بھیگی سی وہ لڑکی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ میرے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی اس کی اس اچانک آمد پر میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں پریشان اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ آج کل کافی اس قسم کی وارداتیں ہو رہی تھی۔ لڑکیاں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے دکان میں یا کہیں بھی گھس جاتی تھی اور واردات کرتی تھی۔ مرد بیچارے تو بلا وجہ بدنام تھے۔ آج کل تو لڑکیاں مردوں سے 10 ہاتھ آگے تھی وارداتوں میں۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا، اس نے عبایا میں اپنا وجود چھپا رکھا تھا اور چہرے پر نقاب تھا۔ اگلے ہی پل میں اس کی آمد کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ یا تو وہ کوئی مجبور لڑکی تھی جسے گھاگ کی تلاش تھی، یا پھر وہ کوئی بلیک میلر تھی۔ خیر جو بھی تھا، اس کی آنکھیں بہت حسین تھی۔ میں چاہ کر بھی اس کی حسین آنکھوں کو اور اس کے نرم لہجے کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ اگر میری بیوی گھر پر ہوتی تو یقیناً مجھے گھر جانے کی جلدی ہوتی، اس کے فون پر فون آ رہے ہوتے اور میرے لیے اس لڑکی کو ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن چونکہ آج میں آزاد تھا اور سامنے ایک لڑکی تھی تو میں اسے انکار نہ کر سکا۔ مجھے تجسس تھا کہ آخر وہ لڑکی اتنی رات کو میرے کلینک میں کیوں آئی ہے اور تنہائی میں وقت کیوں مانگ رہی ہے۔ اوپر سے آنکھیں بھی خوبصورت تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ حسین لڑکی ہوگی۔ میرے دل میں اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش جاگی۔ مجھے ہر انسان کی طرح تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ جب آنکھوں کا یہ منظر ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ میں ایک ماہر نفسیات تھا، لیکن میں ایک انسان بھی تھا، وہ بھی دل پھینک انسان۔ خوبصورت چہرے میری کمزوری تھے۔ میں خوبصورت لوگوں کو زیادہ وقت دیا کرتا تھا، حالانکہ ماہرین نفسیات کو انصاف و ترازو برابر رکھنا چاہیے، لیکن ماہر نفسیات سے زیادہ انسان تھا۔ یہ میری فطرت تھی اور میں اسے بدل نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی بھی بے حد خوبصورت اور نیک عورت تھی، لیکن مرد کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ محترمہ، کیا میں آپ کے یہاں آنے کا مقصد جان سکتا ہوں؟ میں نے اس لڑکی سے سیدھا سوال کیا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی۔ وہ پریشانی سے بار بار باہر دیکھ رہی تھی، پھر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک انسان ایک ماہر نفسیات کے پاس کیوں آتا ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، اس لڑکی نے اپنی سریلی آواز میں کہا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ جتنی اس کی آنکھیں خوبصورت تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کی آواز خوبصورت تھی۔ میں پوری طرح سے اس لڑکی کی طرف متوجہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میری کلینک میں کبھی کوئی خوبصورت لڑکی نہیں آئی تھی، لیکن جن حالات میں وہ آئی تھی وہ حالات خوبصورت تھے، یعنی کہ برسات کی ایک حسین رات، خوبصورت آنکھوں والی بھیگی سی پریشان لڑکی مجھے معمول سے ہٹ کر زندگی کے حالات اور واقعات پر تھی، خاص کر تب
जब उनमें खूबसूरती का आंसर हो और साथ साथ मौसम भी खुशगवार और खूबसूरत हो। मैंने उसे अंदर आने का कहा और वो कमरे में आकर बैठ गई। वही कमरा जहाँ पर मैं सेशन दिया करता था। वो सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसने निकाब अभी तक नहीं हटाया था। मैं उसकी ज़हनियत को अच्छे तरीके से समझ चुका था। वो इतनी जल्दी तो निकाब नहीं हटाएगी। कुछ देर बात करने के बाद किसी बहाने से जरूर अपना चेहरा दिखाएगी। ऐसी लड़कियां ज्यादा देर तक अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकती हैं कि किसी न किसी बहाने से अपने हुस्न का दीदार सामने वाले बंदे को कराना होता है, क्योंकि वो अपने हुस्न को कैश करना जानती हैं। ऐसा नहीं था कि मेरी हर पेशेंट ऐसी थी। हर कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ था, लेकिन इस लड़की की अचानक आधी रात को बरसात में आमद मुझे बहुत कुछ इशारे दे रही थी। मेरा नाम इकरा है। उस लड़की ने अपना नाम बताते हुए अपनी बात का आगाज किया। मैं हमतनगोश होकर सुनने लगा। मैं एक बहुत मजबूर लड़की हूँ, अपना घर छोड़ कर आई हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी मद्दाह हूँ। मद्दाह तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज होगा मेरे जज्बात को बयान करने के लिए जो मैं आपके लिए महसूस करती हूँ। उस लड़की ने अपनी सहर अंगेज आवाज में कहा तो मेरा दिल एक पल को धड़क कर रह गया था। लेकिन मैं कोई जज्बाती इंसान नहीं था, लेकिन मेरे भी सीने में दिल धड़कता था। किसी लड़की का इस तरह से अपने जज्बात का इजहार करना यकीनन मेरे लिए भी मुसरत का बाइस था। मुझे लोगों को परखना खूब आता था। इन चंद मिनटों में मैं उसे इतना तो परख गया था कि वो किसी नेक नियति से मेरे पास नहीं आई थी, बल्कि बहुत बड़ा मकसद लेकर आई थी। मैं उसके खुलने का इंतजार कर रहा था। बात को घुमा फिरा कर करने की मेरी आदत नहीं है सर। मैं सिर्फ आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं आपकी खातिर अपना घर छोड़ कर आई हूँ। आप मुझसे निकाह कर लें। उस लड़की ने अचानक ऐसी बात कर दी कि मैं परेशान हो गया था। मैंने उसकी तरफ देखा, कहीं उसके पास कोई खुफिया कैमरा तो नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो लड़की खुफिया कैमरा लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो कि मैं काफी मशहूर होता जा रहा था। ये भी हो सकता था कि वो मुझे आजमाना चाह रही हो। अगर आप मेरे मुतालिक बहुत कुछ जानती हैं तो ये भी आपको मालूम होगा कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी है और एक बेटी और एक बेटा भी है, और मैं उसके साथ बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे क्या पड़ी है कि एक आधी रात को आने वाली अजनबी लड़की से एक रात में निकाह कर लूं। मैंने दो टोक बात करते हुए कहा। मुझे मालूम था आपका यही जवाब होगा, लेकिन अगर एक लड़की आपकी मोहब्बत में मुब्तला है और अपना घर छोड़कर आपके पास आई है तो क्या आप उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? मैं जवान हूँ और हसीन हूँ, आपको और क्या चाहिए? उस लड़की ने कहा। उसका अंदाज बहुत अजीब था। मेरा वक्त बहुत कीमती था, मुझे सोना भी था और सुबह फिर से अपने काम पर लग जाना था, लेकिन मैं इस रात को जाया नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए ये अनोखी रात थी, एक अनोखा वाकया। मैं भी इस लम्हे से मुकम्मल तौर पर लुत्फ अंदोज होना चाहता था और लुत्फ अंदोज हो रहा था। अगर आधी रात को कोई लड़का अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने के लिए मेरे पास बैठ जाता तो यकीनन इससे मुझे नींद आ जाती और मैं सोना चाहता और उसे कहता कि तुम कल आ जाना। लेकिन चूंकि ये एक लड़की थी तो फितरत के हाथों मजबूर होकर मैं उसे इनकार नहीं कर सका। वो एक पुरतजस्सुस लड़की थी। मुझे उसके मुतालिक तजस्सुस था। मैं उसे जानना चाहता था कि अगर वो मुझे ब्लैकमेल या बदनाम करने भी आई थी तब भी मैं इस मामले की तह में जाना चाहता था और इस सारी सूरत हाल का ड्रॉप सीन चाहता था, और इसी के इंतजार में मैं अपना कीमती वक्त दे रहा था। अगर आपने मुझसे शादी ना की तो मैं भी इसी वक्त आपकी आंखों के सामने आपके ही क्लिनिक में अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं अपनी सारी कश्तियां जला कर आई हूँ। उस लड़की ने मुझे धमकी देते हुए कहा। उसने देखा कि जब मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो एक धमकी पर उतर आई। उसकी बात सुनकर मैं जोर से हंसने लगा, क्योंकि अगर मैं परेशान हो जाता तो वो समझ जाती कि मैं उसके दबाव में आ गया हूँ। मैं उससे ये जाहिर करना चाहता था कि मैं बिल्कुल भी उसकी धमकी से खौफजदा नहीं हूँ। हालांकि अंदर ही अंदर मैं काफी परेशान हो गया था। आखिर ये लड़की कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी? वो मुझसे निकाह तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इस बात का अंदाजा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना उस लड़की को आजमाया जाए। मैंने निकाह की हामी भरी। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और उसे कहा कि चलो अभी मस्जिद में निकाह कर लेते हैं, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मुझे लगा वो नहीं उठेगी, परेशान हो जाएगी, बहाना बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो फौरन उठ खड़ी हुई। उसके इस तरह इतनी जल्दी मान जाने पर मुझे परेशानी हुई थी। तीर निशाने पर नहीं लगा था। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और क्लिनिक लॉक करके बाहर निकला। वो भी मेरे साथ आ गई। हम दोनों मस्जिद की तरफ रवाना हुए। मैं अजीब कश्मकश का शिकार था और वो लड़की बेहद मुतमईन नजर आ रही थी। पहले मुझे लग रहा था कि मैं उसे आजमा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा था कि सिर्फ मैं ही नहीं वो भी मुझे आजमा रही थी।
अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है और हार किसकी। हम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। इमाम मस्जिद शायद तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए जाग रहे थे। उन्होंने हम दोनों को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा तो शायद समझ गए थे कि हम किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं। मुझे आखिर तक लग रहा था कि वो मुझसे निकाह नहीं करेगी और उसे आखिर तक लग रहा था कि मैं भाग जाऊंगा। यूं झटपट से हमारा निकाह हो गया और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई मेरा निकाह हो चुका है। मैंने अभी तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था जो अब मेरी बीवी बन चुकी थी। मैं उसे सीधा घर ले आया। मेरे घर में कोई नहीं था। मेरी बीवी और बच्चे मेरे ससुराल गए हुए थे और उन्होंने एक हफ्ते बाद ही वापिस आना था। मैंने उसे कहा कि अब तो हमारा निकाह हो गया है, अब तो अपना चेहरा दिखा दो। मैं उसका चेहरा देखने के लिए बेताब था। मुझे लग रहा था कि वो अब भी निकाब नहीं हटाएगी, लेकिन उसने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वो इस कदर हसीन थी कि इतनी हसीन लड़की मैंने सारी जिंदगी में नहीं देखी थी। हर किस्म के मेकअप से आ रही उसका खालिस हुस्न मेरी आंखों को और मेरे दिल को बहुत भाग गया था। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपने हसार में ले लिया। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा सर भारी हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे किसी ने कोई नशा आवर चीज सुंघा दी है और मैं बेहोश हो गया था। पहले तो मुझे कुछ याद नहीं आया कि कल रात क्या हुआ था। फिर अगले ही पल मुझे सब कुछ याद आ गया। कल रात मेरी जिंदगी की हसीन रातों में से एक हसीना मेरी ज़ोजियत में आई थी और तमाम रात मुझ पर मेहरबान होती रही। मैं आंखें मलते हुए उठा और उसकी तलाश में सरगर्दा हो गया। मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं परेशान हो गया कि आखिर वो लड़की कहाँ चली गई है। मैं सोच रहा था कि क्या वो मेरे घर में चोरी करने आई थी। हो सकता है कि नकदी और जेवरात चोरी करके भाग गई हो। मैंने घर की तलाशी ली। सब कुछ अपनी जगह था, कुछ भी चोरी नहीं था। अब तो वो मेरी बीवी थी, उसे ढूंढना मेरा फर्ज था, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। मैं उसे एक बार फिर से देखना चाहता था मगर मैं अब तक उसके दीदार से महरूम था। एक ही रात में मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे पूरे हक के साथ अपनाऊंगा और अपनी पहली बीवी को राजी करूंगा कि उसे कबूल कर ले। कैसे भला मैं इतनी खूबसूरत लड़की को जाने दे सकता था जो खुद ही मुझ पर मेहरबान हुई थी। ना जाने कितनी देर तक मैं उसे सारे घर में ढूंढता रहा लेकिन वो मुझे कहीं नजर न आई तो मुझे मायूसी हुई। मुझे लगा मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। एक ही रात में मैं उसका असीर हो गया था। फिर अचानक मेरी नजर साइड टेबल पर पड़े हुए खत तक गई तो उसे देखकर मेरी जान निकल गई थी। मैं समझ गया था कि ये इकरा ने लिखा है। मैंने लरजते हाथों के साथ वो खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। प्यारे शोहर साहब, उम्मीद है आप मुझे ढूंढ रहे होंगे मगर मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी। आप एक माहिर नफ्सियात थे लेकिन आज मुझे आपकी अकल पर मातम करने का दिल कर रहा है। एक अनजान लड़की आई और आपको बेवकूफ बनाकर चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आपसे निकाह करने के पीछे मेरा आखिर क्या मकसद था। यकीनन ये मकसद नेक तो हरगिज़ नहीं था। तो किस्सा कुछ यूं है कि आज से 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी, काफी धूमधाम से, और मैं अभी रुखसत भी ना हुई थी कि बारात में ही मेरे ताजा तरीन शौहर को किसी ने पुरानी दुश्मनी के तहत गोली मार दी और मैं रुखसती से पहले ही बेवा हो गई। ये सदमा इतना बड़ा था कि मुझसे सहा नहीं जा रहा था कि एक तो मैं बेवा हो गई थी, वो भी रुखसती से पहले। दूसरा, जमाने भर की बातें, सबकी चेमगोइयां कि मैं मनहूस हूँ मेरे कानों में पड़ती थी तो मेरा मर जाने को दिल करता था। खैर, मेरी रुखसती ना हो सकी और मैं शादी हाल से सीधा अपने घर वापिस आ गई। मेरे वालिदैन नहीं थे। मैं भाई और भाभीियों के साथ रहती थी। भाभीियों ने मुझे घर से निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन एक बार फिर मैं भाइयों के दर पर आ गई थी। फिर 1 साल यूं ही गुजर गया और दोबारा भाइयों ने मेरी शादी करना चाहिए और मैं दूसरी बार दुल्हन बन गई। इस बार मैं कामयाबी से रुखसत होकर अपने ससुराल तो चली गई थी लेकिन शादी की पहली रात जैसे ही मेरे शौहर मेरे पास आए वो बात करते करते गिर पड़े। बाद में मालूम हुआ कि उन्हें उनकी साबका महबूबा ने शादी की रात ही जहर दे दिया था मुझसे शादी करने की वजह से, और एक बार फिर से मैं बेवा हो गई। मुझ पर इस बार भी कोई इद्दत नहीं बनती थी। मेरी सास ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया कि तुम मनहूस हो, तुम खूबसूरत बला हो जो मेरे बेटे को खा गई। एक बार फिर से मैं रोती धोती अपने भाइयों के घर आ गई थी और एक बार फिर से भाभीियों ने मेरा जीना महाल कर दिया था। इसके बाद मेरे भाई जिससे भी मेरी शादी की बात करते हर तरफ से यही जवाब आता कि आपकी लड़की मनहूस है।
पहले ही 2 शौहर खा चुकी है। हर कोई मुझे अपनाने से डर रहा था। मैंने अपने भाइयों से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। मुझे अब खुद भी अजीब किस्म का खौफ था जो मेरे दिल में बैठ गया था कि मेरी शादी हो गई और मेरा दूल्हा मर जाएगा। शादी की पहली रात ही 2 साल इस अज़ियत में गुजर गए। मैं भी इंसान थी। मेरे अंदर जज्बात का समंदर ठाटे मार रहा था, लेकिन मेरा कुछ बन के नहीं दे रहा था। शादी की कोई उम्मीद भी मुझे नहीं थी। फिर एक बूढ़े आदमी का रिश्ता मेरे लिए आ गया जो कि 4 जवान बच्चों का बाप था। मेरे भाइयों और मेरी भाभीियों ने इसी में आफियत जानी और मुझे उस बूढ़े आदमी के साथ रुखसत कर दिया। मेरा दिल बिल्कुल भी उस बूढ़े आदमी से शादी करने को नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी भाभी ने मुझे इतना तंग किया था कि मैं उस घर से निकलना चाहती थी हमेशा के लिए। उन्होंने मुझे इतनी अजियतें दी थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। मैंने सोचा कि इस बूढ़े से शादी करने के बाद अगर मुझे इस घर से और भाभी से छुटकारा मिल जाता है तो यूं ही सही। इसे अपनी किस्मत समझकर कबूल करते हुए मैं उस बूढ़े शख्स के घर आ गई। रुखसत होकर अभी मैंने घर में पहला कदम ही रखा था कि मेरा बूढ़ा शौहर गिर पड़ा और उसे दिल का दौरा पड़ गया, क्योंकि वो पहले ही बहुत बूढ़ा था और दिल का मरीज था। एक बार फिर से मैं पहली ही रात बेवा हो गई थी। ये तीसरी बार था जो मेरे साथ हुआ था। अब तो मुझे खुद भी यकीन हो गया था कि मैं वाकई मनहूस हूँ। उस बूढ़े शख्स के बच्चों ने मुझे उसी वक्त धक्के देकर घर से निकाल दिया और वही मनहूस का फतवा मुझ पर साबित कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद मैं इंतहाई डिप्रेशन में चली गई थी। मेरा दिल बार बार खुदकुशी करने को चाह रहा था। एक बार फिर से मैं भाभीियों के रहमो करम पर हो गई थी। मैंने नौकरी की इजाजत मांगी, मुझे नहीं मिली। मेरे पास कोई खास तालीम भी नहीं थी। मैं अपने ही घर में नौकर बनकर रह गई थी। घर का सारा काम करती थी, भाभीियों के बच्चे संभालती थी। इससे पहले मैं कभी कोई काम नहीं करती थी। मैं अपने भाइयों की लाडली बहन थी। मेरी भाभी मुझसे डरती थी, लेकिन अब मेरी किस्मत ऐसी हो गई थी कि मुझे जमाने से डर लग रहा था। हर कोई मुझ पर काबिज हो गया था और भाइयों ने मुझसे रुख मोड़ लिया था। अब मेरी चौथी शादी कराने का किसी को कोई ख्याल नहीं आया था और ना ही तो मैं करना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर जज्बात का समंदर वैसे ही ठाटे मार रहा था। मेरी उम्र 26 साल हो चुकी थी। मेरी पहली शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। मैं इंतहाई ज़हनी तनाव और ज़हनी अजियत का शिकार थी कि एक दिन अचानक आपके बारे में सुना। मैं आपकी वीडियोस देखती थी जिसमें आप डिप्रेशन पर तफसीलात से बात कर रहे थे। फिर मैं आपकी बातें सुनती रही। आपकी बातों ने मुझे डिप्रेशन से निकाला। आपकी हर बात दूसरी बात से मुख्तलिफ होती थी और जिंदगी की नवीद सुनाई दी थी। मुझे लगा आप ही वो शख्स हैं जिसकी मुझे जरूरत है। आपके बारे में सुनते ही और आपकी वीडियोस देखते हुए मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है आपकी बातें सुनना। फिर एक दिन मेरे ही जैसा एक केस आपके पास आया। आपने उस पर तफसील से बात की। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे आपके पास जाना चाहिए। अगर मैं आम हालात में आपसे मिलती तो यकीनन ये सब ना होता जो हुआ था। आप नहीं जानते, आपसे मुलाकात के लिए सारा साल मैंने इस तूफानी बरसात वाली रात का इंतजार किया था कि कब इस किस्म की तूफानी बारिश हो और मैं आपके क्लिनिक आऊं। आपका क्लिनिक मेरे घर से करीब ही था। मैं रोजाना आपके क्लिनिक आती थी और आप चले जाते थे। लेकिन उस रात मेरी किस्मत अच्छी थी कि आप नहीं गए, आपकी असिस्टेंट चली गई। मैंने सोचा यही मौका है और मैं आपके पास आ गई। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए था। आपका नाम चाहिए था, आपके निकाह में आना चाहती थी और आपकी कुर्बत चाहिए थी जो मुझे मिल गई। आज मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मैं आपको छोड़कर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आपके पहले से बीवी बच्चे हैं। यकीनन मुझे जिंदगी में शामिल करने से आपको बहुत परेशानी का सामना करना होगा। मैं ताहयात आपकी मनकूहा रहूंगी। यहाँ से जाते हुए मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं आपको कुछ ना हो जाए। कल तमाम रात भी मुझे यही खौफ रहा कि सुबह होने से पहले कहीं आप भी लुकमा अजल ना बन जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मुझे तसल्ली हुई। मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। आपकी खैरियत तलब करती रहूंगी। फकत इकरा। इकरा का खत मेरे हाथ छूट कर गिर गया था और मैं गिरने वाले अंदाज में बेड पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर काश कि वो मुझे एक मौका देती, मैं उसका इलाज भी करता और उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता। जो काम उसे मुश्किल लग रहा था कि मैं अपनी बीवी बच्चों का सामना नहीं कर सकूंगा, इसके बाद या मुझे किसी किस्म की मुश्किल पेश आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी बीवी से मेरी बहुत हमआंगी थी और वो एक समझदार और दीनदार औरत थी। वो अक्सर दूसरी शादी को फरोग देने की बातें करती रहती थी। शरीयत के हिसाब से वो सिर्फ नाम की मुसलमान नहीं थी, वो वाकई में दिल से मुसलमान थी। बहुत अच्छी थी। अगर मैं उसे कायल करता तो आराम से कर सकता था,
लेकिन इकरा ने तो मुझे एक मौका तक नहीं दिया। मेरे पास इसका कोई अता पता नहीं था, यानी कि वो अपनी भाभी के घर चली गई थी और वहाँ पर उसके साथ जरूर बुरा सलूक हो रहा होगा, खासकर सारी रात गायब रहने की वजह से। वो क्या बहाना देगी, सच बताएगी, मैं सोच सोच कर परेशान हो गया था। मैंने फौरन से बेशतर उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिली। सारा दिन मैं ज़हनी अज़ियत में रहा। मैं एक रात में ही उसका असीर हो गया था और अब उसके बगैर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरी बीवी घर वापस आ गई तो मैंने बिना ताखीर के सारा माजरा उसे सुना डाला। हर मशरकी और रवायती बीवी की तरह पहले वो भी उदास हो गई थी। हालांकि वो दूसरी शादी को फरोग देने की बातें करती थी, लेकिन वो इंसान थी। लेकिन बहुत सोचने के बाद उसने कहा कि वो इकरा को कबूल करने के लिए तैयार है। मुझे अपनी पहली बीवी से यही उम्मीद थी। उसने वाकई में मेरी जिंदगी जन्नत बना रखी थी। मैं खुद उसके लायक नहीं समझता था। मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं कितना बेबस था कि अपनी मोहब्बत का इजहार तक नहीं कर सकता था। 1 महीना मैंने जिस अजियत में गुजारे वो मैं ही जानता हूँ। मेरी बीवी भी मुझे परेशान देखकर परेशान हो गई। फिर मेरी बीवी ने मुझे आइडिया दिया कि क्यों ना एक वीडियो अपलोड करते हैं और इकरा को वापस बुलाते हैं। यकीनन वो मेरी बात सुनकर वापस आ जाएगी। मेरी बीवी ने मेरे साथ वीडियो अपलोड की जिसमें इकरा की कहानी सुनाई और इकरा को वापस आने का कहा। यकीनन वो वीडियो देख ली होगी, क्योंकि उसने कहा था कि वो मेरी हर वीडियो देखती है। वीडियो देखने के बाद इकरा मेरे घर चली आई, पर आते ही मेरी बीवी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उसका शुक्रिया अदा किया कि वो उसे कबूल करने को तैयार है। मेरी बीवी इंतहाई रहम दिल खातून थी। इकरा की दुख भरी दास्तान सुनकर उसे उससे हमदर्दी हो गई थी और आज वो दोनों बहनों की तरह साथ रहती हैं और मैं दोनों में इंसाफ करने की भरपूर कोशिश करता हूँ।